વિદ્યાર્થી મિત્રો, મનોવિજ્ઞાનની આ વ્યાખ્યાન શ્રેણીમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. પ્રકરણ 1માં સંવેદન, ધ્યાન અને પ્રત્યક્ષીકરણ આ 3 મુદ્દાઓનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. અગાઉ આપણે સંવેદન આ મુદ્દા અંતર્ગત આપણે જે બાબતોનો અભ્યાસ કર્યો છે તેની ફ્લેશબેક જોઈ લઈએ. આપણે એ જોયું કે સંવેદન એટલે શું, સંવેદન જેના દ્વારા જન્મે છે તે સંવેદકો કોને કહેવામાં આવે છે, સંવેદન કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અને જે સંવેદક છે એના 3 વર્ગો બાહ્ય, શરીરના અને આંતરિક સંવેદકો કયા છે. ત્યાર પછી હવે આપણે સંવેદનના પ્રકારો વિશે સમજવાના છીએ. સામાન્ય રીતે જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા થતા વિવિધ સંવેદનને જો ક્રમબદ્ધ સમજીએ તો સંવેદનના 5 પ્રકારો આ મુજબ છે: દ્રષ્ટિ સંવેદન, શ્રવણ સંવેદન, ગંધ સંવેદન, સ્વાદ સંવેદન અને સ્પર્શ સંવેદન. અને આ સંવેદનની જ્ઞાનેન્દ્રિયો એ અનુક્રમે આંખ, કાન, નાક, જીભ અને ત્વચા છે. આ પૈકી આજે આપણે દ્રષ્ટિ સંવેદન શું છે એની સમજૂતી મેળવવાના છીએ. દ્રષ્ટિ સંવેદન એ આંખ દ્વારા થતી અનુભૂતિ છે, એટલે કે આંખ દ્વારા આપણને દ્રષ્ટિનો અનુભવ એ થતો હોય છે. આંખની જો રચનાની વાત કરીએ તો આંખની રચનાને 2 ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે: આંખની બાહ્ય રચના અને આંખની આંતરિક રચના. આપણે આંખની જે રચના છે એ રચનાને અરીસા સામે ઊભા રહીને જોઈએ તો આપણને એ માનવ આંખ કંઈક આવી દેખાય છે. આપણા મગજ સાથે આપણી આંખો એ જોડાયેલી હોય છે. આ તમારી સામે ચિત્રમાં જે સફેદ ભાગ આંખનો દેખાય છે એ ભાગ એ આંખનો અક્ષિપટેલ એટલે કે સ્કેલેરિયા છે. એ સિવાય આંખના ભાગમાં જે રિંગ આકારનો ભાગ છે એ આંખના સ્નાયુઓ આઇરિસ કહેવામાં આવે છે, અને વચ્ચે જે કાળા રંગનો ભાગ છે એ આંખની કીકી છે. સ્કેલેરિયા, આઇરિસ અને પ્યુપિલ એટલે કીકી, અક્ષિપટેલ, કૃષ્ણમંડળના સ્નાયુઓ અને કીકી આ આંખના મુખ્ય બાહ્ય આંખના 3 ભાગ છે. સફેદ ભાગ એ અક્ષિપટેલ છે અને તે તંતુઓનો બનેલો છે, અને આ ભાગ એ અપારદર્શક છે. એને કારણે આંખની અંદરના ભાગોનું રક્ષણ થાય છે. આ આંખનો ડોળાનો ભાગ એ પારદર્શક છે અને એના દ્વારા પ્રકાશનું કિરણ આંખની અંદર પ્રવેશતું હોય છે. મિત્રો, આ જે છે એ આંખના બાહ્ય ભાગ એની આપણે વાત કરી. કીકી, આઇરિસ અને સ્કેલેરિયા એટલે અક્ષિપટેલ. પાછળ જે એક છેડા જેવો ભાગ દેખાય છે એ આંખની મગજ સુધી સંદેશાઓ પહોંચાડવા માટેની નર્વ છે, અને એને ઓપ્ટિક નર્વ એવું નામ આપવામાં આવેલું છે. તો આ રીતે જે છે એ આપણને આંખ એ શું છે એનો બાહ્ય આંખનો પરિચય પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, બહુ સહેલી બાબત છે. ફરીથી હું રિપીટ કરી દઉં છું કે આંખ બાહ્ય તરફથી જોઈએ છીએ ત્યારે આ પ્રકારની દેખાતી હોય છે. તેમાં કૃષ્ણમંડળના સ્નાયુઓ, કીકી અને અક્ષિપટેલ છે. સફેદ ભાગ અક્ષિપટેલ કહેવામાં આવે છે. તે તંતુઓનો બનેલો છે, તે અપારદર્શક છે, અને એને કારણે આંખની અંદરના ભાગો એનું રક્ષણ થાય છે. હવે પછી આંખની આંતરિક રચનાની વાત આવે છે, અને આંખની આંતરિક રચનાને સમજવા માટે તમે આ દ્રશ્ય જોશો
તો ખ્યાલ આવે છે। આ આંખની આંતરિક રચનામાં પોપચું, પાપણ, ટીકી એટલે લેન્સ, નેત્રમણી, તરલ રસ કોટર, નેત્રમણીબંધના જે સ્નાયુઓ છે, કાચરસ જે આંખની વચ્ચે સફેદ ભાગમાં આવેલો છે, નેત્રપટલ, પિત્તબિંદુ, મધ્યપટલ, અંધબિંદુ, આંખના સ્નાયુઓ, આ બધા જ ભાગો આવેલા છે। મિત્રો, આ ભાગોને સમજવા માટે આ એક વિડીયો આપણે જોઈએ, જેના દ્વારા ખ્યાલ આવશે કે આંખની રચનાનો આંતરિક ભાગ એ Welcome students, today we are going to study this amazing thing that is called human eye। स्टूडेंट्स, हमारी आंख हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो आप समझिएगा होगा क्यों ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। स्टूडेंट्स, लेट मी डू दिस। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर ह्यूमन आई। स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली हमारे पास दो होती है और ये स्फेरिकल शेप है, आपको स्टूडेंट्स देख के ही पता चल रहा है। स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो स्फीयर है उसका डायमीटर होता है वेरी इंपॉर्टेंट 2.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, बच्चों में थोड़ा छोटा होता है लेकिन एडल्ट में नॉर्मली इतना होता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी पुट दिस बैक। फाइन स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये ह्यूमन आई जो है दैट इज अ ग्रेट पीस ऑफ इंजीनियरिंग बाय गॉड। स्टूडेंट, जब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको मजा आ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भगवान जो ऊपर बैठा है वो कितना बड़ा इंजीनियर है, उसने क्या क्या अमेजिंग फीचर्स हमारी आंख में डाले हैं, कितना सोच समझ के हमारी आंख को उसने बनाया है। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ये अमेजिंग चैप्टर। और सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आई, कि हमारे आंख का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज आई, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लेट मी टेक अ नाइफ एंड लेट मी कट इट, राइट स्टूडेंट्स, एंड लेट मी नाउ जूम इट स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। स्टूडेंट्स, ये क्या क्या चीजें हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे, बाद में वो कैसे काम करती है वो भी हम देखेंगे, बट अभी हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ आई, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आई का कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर देख के आपको डरना नहीं है। स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कैसे समझ में आएगा स्टूडेंट्स, बट मैं आपको समझा दूंगा जैसे कि बाकी सारे चैप्टर्स में आपको समझाता आया हूं स्टूडेंट्स, राइट। तो सबसे पहले लेंस में स्टूडेंट्स उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या ये देख के आपको समझ में आ रहा है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स, कैन यू गेस? स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पोर्शन, दिस इज एक्चुअली अ लेंस स्टूडेंट्स, दिस इज एक्चुअली अ लेंस। जैसे हमने पढ़ा ना स्टूडेंट्स, कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, वैसे एक लेंस हमारे आंख में भी होता है स्टूडेंट्स। और शेप से आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स? शेप देखो आप इसका, कॉन्वेक्स लेंस है स्टूडेंट्स, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब स्टूडेंट्स, हमारे दोनों आंखों में एक ही कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है अंदर। समझ लो मेरी बात को, राइट स्टूडेंट्स, वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां पे एक कैच है। देखो, नॉर्मली जो लेंस हमने पढ़ा है जो होता है, जैसे मेरे स्पेक्स में लगा हुआ है, कैमरा में लगा होता है, मैंने आपको बहुत सारे उसके और भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, वो ग्लास का बना होता है स्टूडेंट्स। लेकिन आपको क्या लगता है, हमारी आंख के अंदर जो लेंस होगा क्या वो भी ग्लास का बना हुआ होता होगा स्टूडेंट्स? नो स्टूडेंट्स, ऐसा होता तो बहुत डेंजरस हो जाएगा, वो अगर ब्रेक हो गया तो हमारी आंख डैमेज हो जाएगी। तो ये ग्लास का बना नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल टाइप के मसल का बना होता है, और वो मसल जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट मसल का बना हुआ लेंस होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आंख में आप देखेंगे कि ज्यादातर चीजें जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा और आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे आंख का, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मसल, राइट स्टूडेंट्स। अब देखो क्या होता है कि ये जो लेंस है, ये आप देखो, ये जो पूरी आई की बॉडी है उससे अटैच्ड होता है थ्रू दीज मसल्स। यहां पे आप देखो, ये एक मसल है स्टूडेंट्स, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कि आगे जाके हम पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मसल, सिलियरी मसल, ठीक है। वैसे आप देख सकते हो सिलियरी मसल नीचे भी है, और ये जो लेंस है वो सिलियरी मसल से कनेक्टेड होती है थ्रू दीज सस्पेंसरी लिगामेंट्स, जो ऊपर भी है स्टूडेंट्स और नीचे भी। तो स्टूडेंट्स, इन लिगामेंट्स का काम है कि वो लेंस को अपनी जगह पे रखे, ठीक है। लेंस ऐसे तो कैसे होगा, ऐसे फ्लोट थोड़ी करता रहेगा स्टूडेंट्स। तो आप देखो, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स और फिर सिलियरी मसल्स है नीचे भी और ऊपर भी, वो लेंस को अपनी जगह पे रखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि वो ऊपर नीचे आगे पीछे ना हो, अपनी जगह पे रहे स्टूडेंट्स, ठीक। अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट जिस स्ट्रक्चर की बात करेंगे वो तो आंख में बाहर से ही दिखाई देता है। आपको मेरी आंख में अभी भी दिखाई दे रहा है। तो देखो देखो देखो, आंख जो है बाहर से ऐसी दिखाई देती है स्टूडेंट्स।
तो इसमें आप देखो वो जो ब्लूइश रिंग टाइप स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है और बीच में एक ब्लैक डॉट सा दिखाई दे रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो वो जो ब्लूइश स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड आइरिस, और जो ब्लैक पार्ट है, ब्लैक पार्ट, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। तो स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो ब्लूइश पार्ट है वो अगर मैं निकाल के आपको दिखाऊं तो दैट इज लाइक अ रिंग टाइप स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड दिस इज आइरिस। आइरिस बीच में कुछ नहीं होता है, इसके बीच में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए वो बीच वाला पार्ट यहां पे ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कुछ भी नहीं है इसलिए वो ब्लैक दिखाई देता है, एंड दैट इज आइरिस। आइरिस ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां पर आप स्पॉट कर सकते हैं कहां पर है वो दोनों पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा लेंस था, उसके आगे आप देख सकते हो ये ब्लूइश एक लेयर बनी हुई है, आप समझ होंगे ये वही है। सो दैट इज आइरिस। और आप देख सकते हो कि लेंस के सामने बिल्कुल थोड़े से पार्ट में वो नहीं है, तो नहीं है, तो वो जो होल टाइप स्ट्रक्चर बन गया दैट इज कॉल्ड प्यूपिल स्टूडेंट्स, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल। वहां पे कुछ नहीं है, दैट इज अ होल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल स्टूडेंट्स। फाइन। फिर स्टूडेंट्स आप देखो नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूं, ये जो एरिया है आंख का ये थोड़ा बाहर निकला हुआ होता है स्टूडेंट्स, और यहां पे कुछ खास नहीं होता है, एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड होती है यहां पे जिसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर। तो आप ध्यान देंगे ये भी ट्रांसपेरेंट होती है, लेंस भी ट्रांसपेरेंट था, ज्यादातर चीजें जो आंख में होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है स्टूडेंट्स, प्लीज नोट दैट। फिर स्टूडेंट्स यहां पर एक लेयर होती है, पतली से एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं कॉर्निया। ये एक ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव लेयर। इसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स कि कोई भी डस्ट वगैरह को आंख के अंदर आने नहीं देती है, आंख को प्रोटेक्ट करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पे कई सारे पार्ट्स थे स्टूडेंट्स, वो मैंने आपको बता दिए, आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स ये जो बड़ा सा एरिया आपको दिख रहा है आंख के अंदर, ठीक है, उसमें एक लिक्विड बड़ा होता है जिसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। और स्टूडेंट आपको क्या लगता है क्या ये भी ट्रांसपेरेंट होता होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, ये भी ट्रांसपेरेंट ही होता है, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स ये जो आपको एंड दिख रहा है, ठीक है, आई का, इसको बोलते हैं रेटिना। दिस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आई स्टूडेंट्स, इसकी हम डिटेल में बहुत बात करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आप स्टूडेंट्स यहां पे देखो, यहां से कुछ नर्व्स जो है आंख से ब्रेन तक जा रहे होते हैं, इनको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, ऑप्टिकल नर्व्स, और ये ब्रेन तक जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आंख से बहुत सारे मैसेजेस और सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक जाते हैं, जैसा कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, थ्रू दिस नर्व्स। अच्छा, यहां पर ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, यहां पर जहां पे ये ऑप्टिकल नर्व्स चालू हो रहे हैं उसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं, ठीक है। हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आई। आप देख सकते हो आंख में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, और ये सब आपको बिल्कुल याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, एंड यू विल ऑल्सो बी आस्क्ड समटाइम्स टू मेक अ स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो अगर आपसे स्ट्रक्चर ऑफ आई बनाने पूछा गया स्टूडेंट्स, तो आप क्या करोगे? क्या आप ऐसा कोई डायग्राम बनाओगे? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा डायग्राम ऑब्वियसली आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा डायग्राम बनाओगे स्टूडेंट्स, ठीक है। आप क्लियरली समझ सकते हो कि पेन से या पेंसिल से, प्रेफरेबली पेंसिल से, आप ऐसा डायग्राम पेपर पे बना सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो मित्रों अहींया आपणे ए वस्तु आ विडियोना माध्यम द्वारा समझ्या कि आँखनी आंतरिक रचना ए शुं छे। सौप्रथम तो आ विडियो ए यूट्यूब परथी मेळववामां आवेलो छे, अने एटला माटे हूँ यूट्यूब अने विडियो बनावनारनो खूब खूब आभार मानु छूं कि एमना आवा प्रयत्नने कारणे आपणने आँख विशेनी बहु सरल समजूती मळी छे। आँखनी अंदर नो भाग जेने आपणे आँखनी आंतरिक रचना कहीए छीए, अने अगाऊ आपणे आँखनी बाह्य रचना ए बंने समज्या। हवे आपणे आँखनी प्रक्रिया समजवाना छीए, एटले के रचना जोया पछी आँख काम केवी रीते करे छे आपणे एनी समजूती मेळववाना छीए। पहेला आ वस्तुने हूँ एक एनिमेशन द्वारा बतावવાનો प्रयत्न करूँ छूं। प्रकाशनुं किरण जेने आपणे दकपटल एटले लेन्स कहीए छीए, ए लेन्समांथी कीकीमां आवे छे अने नेत्रमणिमांथी पसार थाय छे અને એ નેત્રપટલ સુધી પહોંચે છે। તો આ રીતે તમે જુઓ છો કે પ્રકાશનું કિરણ એ લેન્સમાંથી પસાર થઈને, કીકીમાંથી પસાર થઈને નેત્રમણીમાંથી એ નેત્રપટલ સુધી પહોંચે છે। નેત્રપટલ સુધી જે પહોંચેલું કિરણ છે એ કિરણ નેત્રપટલમાંથી આપણા મગજ સુધી સંદેશો પહોંચાડે છે। અગાઉ જે મેં તમને વાત કરી હતી કે જે પાઇપ જેવો ભાગ દેખાતો હતો એના દ્વારા ઓપ્ટિક નર્વ દ્વારા મગજ સુધી એ સંદેશો પહોંચે છે।
અને કોઈ પણ પદાર્થ એ આપણા નેત્રના કેન્દ્રમાં આવે છે, પછી મગજને એ સંદેશો પહોંચાડે છે અને આ રીતે મગજને એ જ્ઞાન થાય છે કે એની સામે કોઈક દ્રશ્ય આવેલું છે. આંખનું ફંક્શન જે કઈ રીતે કાર્ય કરે છે તો એને લગતો આપણે આ એક વિડીયો જોવાના છીએ. પણ એ પહેલાં બહુ સરળ શબ્દોમાં કહું તો આંખની રચનાનો બાહ્ય ભાગ અને આંતરિક ભાગ સમજ્યા, અને એના પછી આપણે એ જોયું કે આંખના જુદા જુદા અવયવો છે એનું કામ શું છે. અને હવે આપણે આ વિડીયો દ્વારા આ ત્રણેય પ્રક્રિયા એટલે અવયવો અને આંખની અંદર દ્રશ્યની અનુભૂતિ કેવી રીતે થાય છે એ સમજવાના છીએ. મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે જોયું કે દ્રશ્ય જ્યારે આપણી આંખના કેન્દ્રમાં પ્રવેશે છે અને આપણને એની અનુભૂતિ થાય છે, એની વચ્ચે આંખના ઘણા બધા આંતરિક અવયવો કાર્યરત હોય છે. આમાં કૃષ્ણમંડળના સ્નાયુઓ એનું સંકોચન એ ખૂબ જ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવતું હોય છે. એટલે કે દ્રષ્ટિ સંવેદન માટે આ કૃષ્ણમંડળના સ્નાયુઓનું સંકોચન એ અગત્યનો ભાર મૂકતું હોય છે. કૃષ્ણમંડળના સ્નાયુઓ પ્રકાશની તીવ્રતા પ્રત્યે ખૂબ જ સંવેદનશીલ હોય છે. જો પ્રકાશનું પ્રમાણ વધે તો કૃષ્ણમંડળના સ્નાયુઓ છે અને કીકી નાની બને છે. પ્રકાશનું પ્રમાણ ઘટે તો કૃષ્ણમંડળના સ્નાયુઓ સંકોચાય છે અને કીકી મોટી બને છે. આ રીતે આપણે દ્રષ્ટિ સંવેદનની અનુભૂતિ કરીએ છીએ. ક્યારેક એવું બને છે કે પ્રકાશનું કિરણ અથવા પ્રતિબિંબ એ તેના નિર્ધારિત બિંદુ સુધી પહોંચતું નથી, તો એવા સંજોગોમાં દ્રષ્ટિની ખામીઓ સર્જાય છે અને એના વિશેની સમજૂતી એ આપણે હવે પછીના વ્યાખ્યાનમાં સમજીશું.